Good evening to all. Welcome to Chatushpada. Today we are going to start a new lecture series on respiratory diseases. Uh, in this lecture series, we are going to cover various diseases related with the upper respiratory tract and as well as lower respiratory tract. So the first disease actually is a group of diseases which can be correlated into a one subtype of uh, disease. The name of the diseases are influenza, then rhinitis, allergic rhinitis, and sinusitis. Uh, the purpose of discussing all these diseases togetherly is that the drugs which we are going to discuss now are equally beneficial, or you can say that the same drugs you can use in either of the diseases. Only the symptoms, dosha avastha, differs. Uh, Otherwise, the drugs will be remain the same. श्वास रोग, कास रोग, हिक्का, प्रतिशाय, यही हम ये जो लेक्चर सीरीज हमारा होने वाला है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, प्राण वायु जब हम कहते हैं तो द नेम इटसेल्फ सिग्निफाइज दैट प्राण, द वायु विच कंट्रोल्स द प्राण, although there are other vayus are there which are helping in circulating the vata, which are helping in patient well-being. But among all those five vayus, pran vayu plays a significant role. Why it's so significant and important? Among all the five vayus, two vayus are clinically important: apan and pran. And their clinical significance is measured in such a way that pran vayu, as the name signifies, require immediate attention. It's the most important vayu, whereas apan vayu is the most significant vayu when it comes to the treatment part. So in nutshell, if you want to treat a patient, you have to consider apan vayu broadly. But if patient is facing the emergency situation, the critical conditions, in such cases, immediate resuscitation of pranavayu is needed. So to chronically, or if you want to settle down any of the vayu, you have to treat the apan vayu. You have to anulom the apan vayu, because while doing the anulomarta, all the vayu restores to their original place. But in emergency condition or in certain conditions where immediate attention of pran vayu is needed, so that immediate attention, or certain drugs are there which are helping in pacifying the pran vayu, that we are going to discuss in this lecture series. The most common fear of pran vayu is kapha. Kapha is the most feared dosha.
for pranvayu. Because when kapha avrana comes into play, oftenly does avrana, although various avrana are also working upon pran, udan upon pran. But the most common and feared avrana is kapha. Almost, if you treat the patient with this approach, you will get good prognosis in most of the cases. To start with this lecture series, we are covering the diseases starting from the Nasa Roga. Obviously, we are covering the associated diseases with the uh, nostrils like sinusitis, allergic rhinitis. And later on, in coming days, we are also going to discuss diseases related with the lower respiratory tract. So the today topic is influenza, rhinitis, allergic rhinitis, and sinusitis. So I hope you are little much aware about the differentiation or differentiating factor between influenza, rhinitis, allergic rhinitis, and sinusitis. Can anyone make a brief differentiation that what are the basic difference between these four diseases? Anyone from you? क्या एक बेसिक डिफरेंस है इन्फ्लुएंजा, रनाइटिस, एलर्जिक राइनस और साइनोसाइटिस में? Preet Kamal has raised hand. Yes, Dr. Preet. सर जो इन्फ्लुएंजा है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी इफेक्ट करती है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी इफेक्ट करती है। और जो हाँ. जो राइनस एलर्जिक राइनाइटिस और साइनोसाइटिस है ये मिक्सच ये ऊपर रह जाता है। राइनाइटिस इवन इज नोज एलर्जिक व्हेन समथिंग एलर्जिक, राइट? सो बेसिकली इट्स प्लेस वेयर दे इफेक्ट ओके, प्रॉब्ली। ठीक. इन्फ्लुएंजा डॉक्टर साहब ने सही बोला, दोनों एरिया को इफेक्ट करती है, लेकिन अभी के लिए हम चल रहे हैं अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो मेन डिफरेंस ये है कि इन दोनों का नटशेल हम ये निकाल लेते हैं कि हम इन चारों डिजीजेस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, द अक्यूट वन एंड द क्रॉनिक. अब आपको सिम्टम्स मैं थोड़े से ब्रीफ कर दूं. इन्फ्लुएंजा में रनिंग नोज होगा, फीवरिश फीलिंग होगी, रनिंग नोज होगा, फीवरिश फीलिंग होगी, सॉरी, फीवरिश फीलिंग होगी या फीवर होगा, हेडेक होगा, स्नीजिंग होगी. अर्नाइटिस में भी सेम सिम्टम आपको देखने को मिल जाएंगे. एलर्जिक अर्नाइटिस में फीवर कॉमनली देखने को मिलता नहीं है. सो मोस्ट कॉमनली स्नीजिंग होगी, देन रनिंग नोज हो सकता है. बाकी और सिम्टम्स अगर बहुत क्रॉनिक हो चुका है तो ग्रे हेयर भी हो सकते हैं. ठीक है. मोस्ट कॉमन इज स्नीजिंग एंड रनिंग नोज. देन साइनोसाइटिस में ऑब्वियसली यू विल गेट डिस्चार्ज. इट मे बी पुरुलेंट और नॉन पुरुलेंट. अगर पुरुलेंट है तो अक्यूट हो सकता है, अगर नॉन पुरुलेंट है तो क्रॉनिक हो सकता है. गॉट इट. लेकिन अब ये कंपल्सन नहीं है कि डिस्चार्ज होगा.
The most cardinal symptoms of sinusitis is that headache will be there. Headache will be there. And depending upon the which sinus is affected, you may have the symptoms of headache related to your frontal region or maxillary region, then parietal region. हेडेक कहीं से भी हो सकती है। और इसका सबसे एक डिफरेंशिएटिंग फीचर आपको देखने को मिल सकता है कि पेशेंट को पहले कोल्ड कफ की हिस्ट्री रही होगी या एलर्जी की हिस्ट्री रही होगी, ब्लॉकेज ऑफ नॉस्ट्रल हो सकता है, नॉस्ट्रल का ब्लॉकेज हो सकता है, किड ऑफ नॉस्ट्रल हो सकता है, ठीक है, एक साइड का नॉस्ट्रल ब्लॉक हो सकता है, वो हिस्ट्री आपको देखने को मिल सकती है, सीनीजिंग देखने को मिल सकती है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज हेडेक। दूसरा, पेशेंट जब सिर को हिलाता है, टू एंड फ्रो करता है, तो ही विल फील हेडेक। सो हेडेक फॉलोड बाय मूवमेंट ऑफ हेड। ठीक है, सो ये ब्रॉडली वे में सिम्टम्स हैं जो कि आपको इन ऑल द फोर डिजीज में आपको देखने को मिलेंगे। इसी के बेस पे यू कैन मेक द डायग्नोस। नाउ हम इसको और नटशेल में लेके जाते हैं, तो मैंने आपको जैसे अभी बताया कि हम इसको मेजरली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब वो डिवीजन किसके बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ड्रग। सो क्या डिवीजन हो सकती है? पेशेंट दो ही फेज में होगा, होगा। दो ही फेज में आपके पास आ सकता है, इसके अलावा और कोई फेज नहीं है। क्या है? या तो अक्यूट फेज में होगा या क्रॉनिक फेज में होगा। अक्यूट फेज का मतलब यहाँ पे ये है कि डिजीज अभी ही स्टार्ट हुई है, कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुई है, कुछ वीक्स पहले हो सकती है। क्रॉनिक फेज का मतलब ये हो सकता है कि डिजीज जो है वो काफ़ी लंबे समय से चल रही है। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पास्ट मैनी मंथ्स और मैनी ईयर्स। This is only two types of clinical presentation, although you can also count subacute type condition, but that is not important here. Either the patient is coming in acute condition or in the chronic condition. Now, selection of drugs. देखिए ब्रॉडली नासा रोग को प्रतिशाय पीनस, इस किस में फॉल कर रहा है? पीनस प्रतिशाय, है ना? पीनस प्रतिशाय, अब मैं आगे से टर्म यूज करूंगा पीनस प्रतिशाय, और शीर्षूल इसी के साथ काउंट हो जाएगा, कफ शीर्षूल। आपको पता है, एज यू अवेयर दैट मोर देन 90%, 90% थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 80% ऑफ द केसेस हैविंग द पैथोलॉजी ऑफ कफा प्लस वाता। जो भी केस आपके पास क्लिनिक में आएंगे उनमें 80% पैथोलॉजी में कफ और वात की इन्वॉल्वमेंट होगी। मीन्स अगर आप उष्ण स्निग्ध चिकित्सा करें, उष्ण स्निग्ध चिकित्सा, तीक्ष्ण चिकित्सा, तो
बात बन जाएगी, आपको यू विल गेट द ऑप्शन. बट in 20% of the cases, pitta involvement is there. Kapha is there, vata is there, but pitta involvement is also there. अब उस कंडीशन में आप कफ वात हर चिकित्सा करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उतना सिग्निफिकेंट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा. उसके लिए हमारे पास अलग सेट ऑफ मेडिसिन है. सो आपको वहां पे तिक्त रस चिकित्सा देनी पड़ेगी. तिक्त रसा प्लस बिट ऑफ कटु रसा, मतलब थोड़ा सा आपको एक प्लान के साथ चलना पड़ेगा. नहीं आपको समझ आ रहा तो उसके लिए अलग से ड्रग्स भी हैं जो कि इस कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं. यहाँ तक क्लियर है आपको? हमने देखा कि क्या ये डिजीजेज हैं, इनके अलग अलग क्या सिम्टम्स हैं, और आयुर्वेद में हम इसको कैसे लेके चल सकते हैं. फिर हमने देखा कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दो प्रकार से ही हो सकती हैं, चाहे अक्यूट में आएगा पेशेंट या क्रॉनिक में आएगा, इसके अलावा पेशेंट आ नहीं सकता है. क्या सिम्टम्स हैं वो हमने चारों के देख लिए. अब उसी के बेस पे आगे चिकित्सा चलेगी. अब इंटरेस्टिंगली कई बार इन्फ्लुएंजा का पेशेंट राइनाइटिस के साथ मिक्स होता है. दोनों एक जैसे ही हैं. एलर्जिक राइनाइटिस का कई बार इन्फ्लुएंजा के साथ मैच खाता है. मींस किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है पुरानी, लेकिन अभी वो एग्रेवेट होगी, मोर एग्रेवेट होगी, सुपर एडेड कोल्ड उस पे आ गया है, ऐड हो गया है, तो अभी वो क्रॉनिक प्लस अक्यूट में आ गया है ना. साइनोसाइटिस किसी को पुरानी चल रही है, अभी कोल्ड साथ में हो गया है, तो कंडीशन एग्रावेट होगी. लेकिन इनसे हट के कुछ भी एसोसिएशन नहीं होगी. हाँ, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है, दैट इज अ सेपरेट इशू, वो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे. अब चॉइस ऑफ ड्रग कैसे डिसाइड करनी है और कौन सी ड्रग हमने देनी है. देखिए मैं आपको बड़ी सारी ड्रग्स नहीं बताऊंगा, बड़ी सारी ड्रग्स बताने का कोई फन नहीं है. ड्रग्स वही बताई जाएंगी जो कि सिद्ध है, सिद्ध है मेरे द्वारा, और जो सिद्ध पीछे से जो यूज कर रहे हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड है. ज़्यादा आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है. जो मैंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेडिसिन यूज़ की हैं, जिनके श्योर शॉर्ट रिजल्ट है, वही आपको बताई दी जाएंगी. अप्रोच क्या रहेगी? देखिए इसमें अप्रोच बड़ा मैटर करती है. पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि पेशेंट में पित्त की इन्वॉल्वमेंट है या प्योरली कफ है. अगर प्योरली कफ वातज है तो द फर्स्ट ड्रग इन एनी ऑफ द कंडीशन, कोई सी भी प्रॉब्लम किसी को पेशेंट को हो रही है अक्यूट में, अगर अक्यूट में पेशेंट आ रहा है तो सिलेक्ट दशमूल कटुत्राइनम कषाय. ब्लाइंडली फॉलो दिस कषाय, दशमूल कटुत्रायादि कषाय. इट्स ए सिद्ध योग, आपको इससे उपशम मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा. जब मैं ये कह रहा हूँ मिलेगा ही मिलेगा, तो 110% मिलेगा अगर कफ वातिज पेशेंट. अब इसमें अगर पेशेंट को हेडेक हो रही है, जबरदस्त रिजल्ट है. एलर्जिक राइनाइटिस है, अक्यूट है, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा. राइनाइटिस है, इन्फ्लुएंजा है, इन एनी ऑफ द कंडीशन यू विल गेट गुड उपशय विद द शमूल कटुत्राइनम कषाय इन अक्यूट कंडीशन. नाउ एडजुवेंट के साथ हम इसकी एफिकेसी और बढ़ा सकते हैं. क्या एडजुवेंट है? सबसे पहला द मोस्ट कॉमन एडजुवेंट इज त्रिभुवन कीर्ति रस. त्रिभुवन कीर्ति रस 1 और 2 बीडी. अब ये कहाँ पे देना है? त्रिभुवन कीर्ति रस आपने देना है अगर इन्फ्लुएंजा है पेशेंट को. अक्यूट तो मैंने आपको बताया, ये अक्यूट कंडीशन में देना है. साइनोसाइटिस है, हेडेक है, सोर थ्रोट है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फीवर अगर साथ में चल रहा है, देन त्रिभुवन कीर्ति रस इज द राइट एडजुवेंट फॉर दिस कंडीशन. अब एक और एडजुवेंट है,
अगर फीवर इतना नहीं है, पेशेंट को हेडेक बहुत ज्यादा है, साइनोसाइटिस वाली कंडीशन बन रही है, देन यू शुड ऐड सूर्य प्रभा मेडिसिन, सूर्य प्रभा गुलिका, मैन्युफैक्चर्ड बाय आयुर्वेदशाला कोटाकल, 1 or 2 BD along with the कषाय। प्रोडोमिनेंटली अगर हेडेक पेशेंट को ज़्यादा तंग कर रहा है, नॉर्मल हेडेक है तो त्रिभुवन कीर्ति भी कवर कर देगा, लेकिन साइनोसाइटिस वाली हेडेक है, सिवियर हेडेक है, सूर्य प्रभा गुलिका। गॉट इट। अब अगर यही कंडीशन बच्चे को है तो डोज आपने कम कर लेनी है, 5 ml कर देनी है, जहाँ 5 ml 10 ml कर देनी है। बाई प्रभावकरण, एक तो बच्चा, अगर बच्चे को है ये दिक्कत, प्लस अगर बॉडी पेन्स फुल बॉडी में है, होल बॉडी में मसल एक्स हो रही है, पेन्स हो रही है, देन इन दैट कंडीशन विट्टू मारण गुलिका, विट्टू मारण गुलिका 1 to 2 BD, एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। विट्टू मारण गुलिका का मैं जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ वो पिन पॉइंट इंडिकेशन है। विट्टू मारण गुलिका एक तो बच्चों में है, पेडियाट्रिक्स में अगर दिक्कत आ रही है, या होल बॉडी एक है। अगर बच्चों में दिक्कत आ रही है तो 1 टैबलेट सफिशिएंट है, अगर बड़ों में है होल बॉडी एक है तो विट्टू मारण 2 BD आपको देनी है। यहाँ तक आपका सारा कवर हो जाता है, चाहे वो साइनोसाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस है, राइनाइटिस है, इन्फ्लुएंजा है, अक्यूट कंडीशन सारी कवर हो जाती है। और ये 90% ऑफ द केसेस में जबरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिले। लेकिन स्टिल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बहुत टाइप्स की होती है, बहुत टाइप के पेशेंट्स होते हैं, हर पेशेंट को सारी जो ड्रग्स बताई हैं कई बार अच्छा रिजल्ट नहीं देती। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास और भी अस्त्र शस्त्र हैं, वी हैव लॉट ऑफ गुड ऑप्शंस। आपके पास कितने चॉइसेस हैं, कितनी ड्रग्स की आपको नॉलेज है, कितनी ड्रग्स की आपने सिद्धता प्राप्त की हुई है, ये आपकी सक्सेस रेट को बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़े ड्रग्स का आपको पता है, ठीक है, यू विल प्ले वेल, लेकिन कुछ पेचीदे केसों में आप फंस सकते हो, तो उसके लिए हम कुछ ऐसे ड्रग्स और भी देखेंगे। एक और ड्रग है जो कि अगर प्योर वातिज कंडीशन है, कफ है लेकिन वात ज्यादा है, वात की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो दशमूल रसायनम, दशमूलम रसायनम। पेशेंट क्षय में भी जा रहा है, थोड़ा वीक है पेशेंट, छींकें ज्यादा आ रही हैं, कफ की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वातिज आपको लग रहा है, शोथ जैसा लग रहा है, दशमूल रसायनम 1/4 TBSP 4 times a day, अगेन मैन्युफैक्चर्ड बाय कोटकल। ये अक्यूट कंडीशन में आप दे सकते हो। अगर किसी को सोर थ्रोट ज्यादा है, आवाज ही बैठ गई है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए व्योशादी वटकम, व्योशादी वटकम अगेन मैन्युफैक्चर्ड बाय कोटकल, इट्स ए गुड मेडिसिन। हम इसको आगे कल के लेक्चर में भी देखेंगे, जब हम लेरेंस और जो गले के थ्रॉट की डिजीज को देखेंगे। बड़ी तीक्ष्ण औषध है, और बड़ा अगर स्ट्रांग कफ का आवरण हो तो, पित्त का अगर हुआ तो मत दीजिए इसको, ये अग्रावेट कर देगा। स्ट्रांग कफ की इन्वॉल्वमेंट है तो 1/4 TBSP BD और 4 times a day।
यू गॉट इट? इतना हो गया। अभी आते हैं पित्त की तरफ। अगर पैथी किसी की कंडीशन होती है तो पित्त की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, हमेशा याद रखिए, इसमें आप फंसोगे, दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में फंसोगे आप। क्योंकि अमूमन हमारी आदत है कि जब हम कोल्ड को देखते हैं तो हमें लगता है कफ की इन्वॉल्वमेंट है, शिर का उदर जत्रुगत रीजन है, प्रतिचाय हो रहा है, नासा का रोग है तो कफ का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा निदान पूछिए पेशेंट से कि आपको क्या लगता है कि ये क्यों हुआ आपको। अगर निदान में कोई आपको उष्ण तीक्ष्ण औषध का इंटेक है तो उसको पित्त में काउंट करिए, बेशक सिम्टम उसके कफ के। अगर निदान में कफ वर्धक आहार विहार का इन्वॉल्वमेंट है तो उसको कफ में इंक्लूड करिए, क्योंकि हाल दो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, लेकिन अगर आप नए हो प्रैक्टिस में तो मुश्किल रहेगा थोड़ा सा। तो निदान हमेशा पूछिए। अगर आपने डायग्नोस बना लिया कि पित्त की इन्वॉल्वमेंट है तो सबसे बेस्ट औषधि ये है कि आप सितोप्लादी से शुरू करें। सितोप्लादी चूर्ण पर, क्योंकि कफ है साथ में, कफ को भी आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा, सो यू हैव टू ऐड हनी। 3 to 6 ग्राम बीडी और 4 times a day। गॉट इट? एक और मेडिसिन अच्छी है, त्रिभुवन मिश्रण। त्रिभुवन मिश्रण ये एक पेटेंट मेडिसिन है धन्वंतरी औषधालय की। अब इसमें क्या है, त्रिभुवन मिश्रण और एक और कंपनी की है ए फ्लू ओसिल फोर्ट, ये दूध पापेश्वर की है। अब इनमें कॉम्बिनेशन दोनों की सेम है। क्या कॉम्बिनेशन है, इसमें त्रिभुवन कीर्ति है, त्रिभुवन कीर्ति रस है, सुशेखर है और महासुदर्शन चूर्ण है। अभी मुझे लगता है कि जो धन्वंतरी वालों की है उसमें गोदंती भस्म है शायद, लेकिन लगभग सेम सी कॉम्बिनेशन है। दूध पापेश्वर वालों की यही कॉम्बिनेशन है। और त्रिभुवन मिश्रण जो धन्वंतरी औषधालय की है उसमें गोदंती भस्म है। सो उन्होंने क्या किया है, अच्छे पेटेंट मेडिसिन हैं ये, आपको पित्त वाले एक कंडीशन में आपको ये अच्छा रिजल्ट देगी। आ, उसमें क्या किया गया है कि पित्त को भी काउंटर करने के लिए मेडिसिन डाली गई है, गोदंती भस्म होगी या सुशेखर रस महासुदर्शन चूर्ण हो गया। इससे क्या हो रहा है कि जो पित्त का साथ में इन्वॉल्वमेंट है वो कवर कर रहे हैं। सो सितोपलादी चूर्ण के साथ अगर आप इनमें से कोई औषध देते हो, बात बन जाएगी, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आप सितोपलादी चूर्ण के साथ यू कैन आल्सो यूज दशमूल कटुत्राय कषाय, नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज, साथ में आप सितोपलादी चूर्ण डाल सकते हो। अब साइनोसाइटिस के लिए बेस्ट मेडिसिन, अक्यूट हो या क्रॉनिक हो, दशमूल कटुत्राइनम बेस्ट है। अब क्रॉनिक कंडीशन में भी आप यही मेडिसिन यूज कर सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड आप क्रॉनिक में त्रिभुवन का यूज कम करें, है ना। और कषाय में आप इंदुकांतम यूज करें। इंदुकांतम कषाय इज मोर बिट ए सॉफ्टर वर्जन ऑफ दशमूल कटुत्राइनम कषाय। इंदुकांतम कषाय 15 ml आप बीडी यूज कर सकते हैं, जो इन सभी डिजीजेस के क्रॉनिक फेज। साइनोसाइटिस के लिए स्टार्ट आपको उसी से करना पड़ेगा, लेटर ऑन आप इस तरफ मूव कर सकते हैं। अब अगर साइनोसाइटिस बहुत स्ट्रांग है, जिद्दी है, तो यू कैन आल्सो यूज वर्ण आदि कषाय। वर्ण आदि कषाय
अगर दशमूल कटुत राइनम से ठीक नहीं हो रहा है तो यू कैन यूज वर्ण आदि कषाय 15 ml बीडी। अगर बहुत पैथिक इन्वॉल्वमेंट है, ना इंदुकांतम पेशेंट सूट कर पा रहा है, ना वर्ण आदि, फिर भी साइनोसाइटिस है, यूज पथ्य अक्षधात्री आदि कषाय। पथ्य अक्षधात्री आदि कषाय बीडी और माइग्राकोट। माइग्राकोट टैबलेट कोटाकल की ही है, सेम कंपोजिशन है पथ्य अक्षधात्री आदि कषाय की तरह की, 2 BD। लॉन्ग विथ यू कैन यूज शीर्शूल वज्रादि रस। वन और 2 BD। समझ आ गया आपको? ये सारी चिकित्सा है। अब एलर्जिक राइनाइटिस में आप क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस में सीतोप्लादी चूर्ण या तालिस पत्रादि चूर्ण का यूज कर सकते हैं। अगर तालिस पत्रादि चूर्ण वहां पे यूज करना है जहां पे एक्सपेक्टोरेशन अगर बड़ी ज्यादा हो रही है। अगर एक्सपेक्टोरेशन बहुत ज्यादा है तो यूज तालिस पत्रादि चूर्ण अलॉन्ग विद हनी। अगर एलर्जिक राइनाइटिस बहुत क्रॉनिक हो चुकी है तो यू कैन आल्सो चूज चित्रक हरित की लेहम। चित्रक हरित की लेहम। अब चित्रक हरित की लेहम यूज करने की सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। यू हैव टू सी द प्रोफाउंड अमाउंट ऑफ कफा। पेशेंट की प्रकृति कफज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो पित्त वाला हो। पित्त वाले को चित्रक हरित की लेहम सूट नहीं करता। पित्त वाले को चित्रक हरित की लेहम सूट नहीं करता, इसलिए डोंट एडवाइस चित्रक हरित की लेहम इन पैथिक कंडीशन। हाँ, क्रॉनिक कंडीशन में यू कैन यूज। कफज वाला पेशेंट है तो एलर्जिक राइनाइटिस अच्छी मेडिसिन है। थोड़ा सा और सोमे में आते हैं तो यू कैन यूज अगस्त्य हरित की रसायन फॉर क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस। मैंने एक केस स्टडी भी डाली थी, सेम आप अगस्त्य हरित की रसायन यूज कर सकते हैं क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस में। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस 4 डिजीजेस। आने वाले लेक्चर्स में दोबारा से आपके सिद्धांत स्ट्रांग होंगे, क्योंकि इनके कुछ कुछ ग्लिम्स हम उनमें भी देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस में। इन डिजीजेस के प्रति आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर, इफ पित्ता इज इन्वॉल्व व्हाट शुड बी एडेड इन सिम्टम इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो भी मैंने बताया आपको, जो भी मैंने अभी आपको सारी डिजीज बताई, सीतोपलादी चूर्ण। हाँ, रेस्पिरेटरी डिजीज वो हम पढ़ेंगे बाद में, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की वो हम देखेंगे। यस डॉक्टर पुष्पिंदर, यू कैन आस्क। सर हाँ जी। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन था। इट माइट बी अ सिली क्वेश्चन बट मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें। हाँ, कि जैसे आपने बताया ना, कफ एंड वात का जो ट्रीटमेंट है वो एक जैसा हम कर सकते हैं। जहाँ पे पित्त का इन्वॉल्वमेंट है वहां पे हमें थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। तो हाँ। सर इसमें पित्त इन्वॉल्वमेंट में जैसे कि क्या मेनली किस उसके सिम्टम से पता चलेगा कि उसमें पित्त इन्वॉल्वमेंट है? क्या उसके जो डिस्चार्ज, नेजल डिस्चार्ज है उसके कलर से, या पेशेंट का जो प्रकृति है या पेशेंट का कलर कॉम्प्लेक्शन है उससे भी हम पता लगा सकते हैं? पेशेंट के कलर या सिर्फ कम्प्लेक्शन निदान से? ही मैटर करेगा? नहीं, निदान तो नंबर 1 है ना, निदान तो नंबर 1 है। जी जी। निदान हो गया, फिर फेयर कम्प्लेक्शन कम्प्लेक्शन हो गया, पेशेंट का बात करने का तरीका, अग्रेसिवनेस, परस्पिरेशन, फिर डिस्चार्ज कैसा है, थोड़ा है कम है, फीवरिश फीलिंग कैसी है, बहुत ज़्यादा एग्रेवेटिंग टाइप की फीवरिश फीलिंग है, तो उससे पता चलता है।
थोड़ा सा ना ये महसूस करने की सिम्टम्स है, इनको आप ऐसे वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते। ये थोड़े से ऐसे अनुभूति के लक्षण होते हैं जिसको आप देख के जज कर पाते हो कि पेशेंट पैथिक में है या कफज में है ना। क्योंकि इसमें ना एक सेंस ऑफ फील डेवलप होती है वैद्य के अंदर, यार ये नहीं, ये पित्तिक का ही है, इसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट है। ऑब्वियसली जो फैक्टर मैंने आपको बताए वो आप काउंट कर सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप अपने डायग्नोस को और रिफाइन कर सकते हो। लेकिन इन द एंड ये ओवर ए पीरियड आपको डेवलप होगी चीज़ कि आप प्रतिशाय में भी पित्त का इन्वॉल्वमेंट देख पाओ, है ना। कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि फीवर जब होता है तो ये फीवर इन पेशेंट को थोड़ा सा कफ वाला फीवर जो है वो इतना उत्तेजित नहीं करता, पेशेंट को तंग नहीं करता मानसिक तौर पे। लेकिन पित्त वाला फीवर हमेशा पेशेंट को विचलित करता है, विचलित करता है, उसकी सेंसेस को डिस्टर्ब करता है, उसकी इंद्रियों के अधिष्ठान को डिस्टर्ब करता है, परस्पिरेशन करेगा। दूसरा, आपको पेशेंट का फेस देख के पता चल जाएगा कि ये पित्त के लक्षण है। एक्सपेक्टोरेशन इतनी नहीं होगी, है ना। तो इसके बेस पे आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जी सर। और सर सॉर थ्रोट में भी जैसे बोला कि पित्त इन्वॉल्वमेंट है, उसमें भी हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा ना? हाँ, सॉर थ्रोट पे वो सीतोपलादी चूर्ण वैसा ही है आपको। जी। सॉर थ्रोट देखो, प्रतिशाय स्टार्ट होने से पहले सोर थ्रोट ही होता है। और हम्म। अ, जो पित्त वाले सोर थ्रोट है, प्रतिछाएं हैं, उनमें मैक्सिमम आपको सोर थ्रोट देखने को मिलेगा। और 2-3 दिन की हिस्ट्री होती है उसमें, है ना। तो उसमें भी आपको निदान में कारण मिल जाएंगे कि पेशेंट ने क्या ऐसा खाया था, पित्तवर्धक कोई मसाले वाली चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से गला उसका ख़राब हुआ है। तो उसके बेस पे आप ये डायग्नोस बना सकते हो। ये आपके डायग्नोस का जो आर्ट है, ये जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेंगे आगे और रिफाइन होता जाएगा। सो अभी के लिए आप जितना समझ आता है उतना समझिए, क्योंकि जैसे जैसे हम बाकी डिजीजेस भी कवर करेंगे आप और डायग्नोस में अच्छे होते जाओगे। और सर एक लास्ट क्वेश्चन था, जैसे कि क्रॉनिक एंड एक्यूट का हमने डिस्कस करा है ना, तो हाँ। सर एक पेशेंट है जिसको बहुत सालों से वो प्रॉब्लम है, लेकिन हम्म, अभी 4-5-6 महीने से वो नहीं थी। तो अब हम्म, उसको दोबारा से वो जैसे कि सीजन चेंज हुआ तो उसको फिर से एलर्जिक राइनाइटिस या साइनसाइटिस हो गई। तो उसको हम्म, हम एक्यूट में लेंगे या क्रॉनिक में लेंगे, क्योंकि पिछले जो 6 महीने से तो वो ठीक था। एक हम्म। पेशेंट है जो बिल्कुल नया ही आया है और उसको फर्स्ट टाइम हुआ है, नहीं, तो वो वो तो क्या होता एक्यूट है में। कि क्रॉनिक जब प्रेसिपिटेट होता है फ्रेश एपिसोड, तो उसको स्टार्टिंग में अक्यूट में माने। ओके 2-3 ठीक। हफ्ते आप उसको अक्यूट में माने, उसके बाद उसकी चिकित्सा करें। और सर जैसे कि एक्यूट का पेशेंट हमारे अक्यूट पास का आता है सबसे तो बड़ा इसका तो साइन ये फिर। भी होता है। जी। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं सर, आप बताइए सर। अक्यूट का सबसे बड़ा साइन ये भी होता है, एक तो फीवर एसोसिएटेड होता है, साथ में लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, बॉडी एक्स होती हैं, थोड़ा सा सुस्तापन रहता है पेशेंट को, लथार्जीनेस, इनएक्टिविटी। ये सारे सिम्टम्स भी बताते हैं कि अक्यूट फेस सब मर्ज हो रहा है क्रॉनिक के ऊपर। जी। तो हम्म, सर जैसे कि एक्यूट में जो फिर ट्रीटमेंट है वो जैसे कि पेशेंट एलोपैथी से भी होकर आया होता है, जैसे कि लास्ट सीजन में वो एलोपैथी में गया, तो उसमें जैसे होता है कि शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट चलता है, जैसे कि 5 to 7 days और मैक्सिमम 10 days। तो सर हमारे पास भी जब पेशेंट आएगा एक्यूट में तो हमें भी तब तक ही देना ना, ये शॉर्ट टर्म ही रहेगा ना ट्रीटमेंट इसका, उसके बाद रसायन पे आ जाएगा? नहीं, मैं आपसे ये आपको एडवाइस करूंगा कि आप सिम्टम्स को देख के देखिए। जो जो सिम्टम अभी मैंने आपको बताए हैं एक्यूट वाले, वो अगर उसमें जी। प्रेजेंट है तो आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम उसको ट्रीट करिए। अगर वो सिम्टम निकल गए हैं अभी, तो क्रॉनिक में ट्रीट करिए हम्म। उसको। नहीं सर, अगर पेशेंट आया ही एक्यूट डिजीज के साथ है, मतलब कि जैसे कि हाँ, सीजन चेंज हुआ और उसको हाँ, कफ कोल्ड स्नीजिंग ये स्टार्ट हो हाँ, गया, तो हाँ। जैसे कि एलोपैथी में वो होता है ना कि सिर्फ 7 से 10 दिन तक का ट्रीटमेंट चला, जब 5 दिन ट्रीटमेंट चला तो पेशेंट ओके हो गया, ट्रीटमेंट बंद हो गया। तो हम्म, सर हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है सिर्फ ये सीजनल एलर्जी लेके एक्यूट हम्म, फेज में, तो हम्म। क्या उसमें भी हमें शॉर्ट टर्म में ही चलना पड़ेगा ना, मतलब कि इसमें नहीं, तो लॉन्ग टर्म तक? शॉर्ट टर्म करके फिर लॉन्ग टर्म का रसायन डालिए उसको। जी जी। हाँ, ठीक सर, अगस्त्य ठीक। रसायन बेस्ट रहता है उसमें। जी बस सर, ठीक सर, ओके, थैंक यू सो हम्म। मच, थैंक यू। वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन है?
यस डॉक्टर रवि, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, साइनोसाइटिस जो पेशेंट्स को ज़्यादा देखते हैं उसमें हाँ ऐसा मिलता है कि नेजल पॉलिप्स की भी हिस्ट्री मिलती है उसमें, या हाँ नेजल हाँ हाँ पॉलिप्स रहता है। हाँ। तो उसमें कितना भी हम ट्रीट कर लेते हैं, अगर नेजल पॉलिप का नहीं करते हैं तो साइनोसाइटिस उसका वो बाद में क्रोनिक में वो पड़ा ही रहता है। हाँ तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर? देखिए, साइनोसाइटिस अगर नेजल पॉलिप्स के साथ है तो वर्णादि कषाय, जी सर। वर्णादि कषाय या गुगलू तिक्तकम कषाय, जी सर। इन दोनों कषाय में आपने कोई कषाय देना है, ठीक है। फिर एक तेल आता है नासा अर्श तेल, जी सर। नासा अर्श तेलम, ये कोटाकल का आता है। इसका आप नस से भी दे सकते हो, प्लस तालू जो होता है उस पर भी लगाना है ये तेल। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। साथ में चित्रखरित की लेहम दे सकते हो, कांचनार गुगलू यू कैन आल्सो ऐड, है ना। कफवर्धक जी जो सर। मेडिसिन है शरण करने वाली, अगर पेशेंट ओबीज है तो रोगवर्धनी डाल सकते हो। अदर जो ड्रग्स है जो अदर डिजीजेस की हैं उनका भी आप हेल्प ले सकते हैं, जी सर। ठीक है। सर साइनोसाइटिस में सर नस से क्या क्या रोल है? क्या नस का भी प्रयोग कर सकते हैं सर? नशे का रोल आप करते हैं लोग, लेकिन मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप स्टार्टिंग में तो मत करिए, है ना। आप ओरल ड्रग से उसको करिए। एक कोटाकल का एक इनहेलर कैप्सूल भी आता है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, उसमें यूक्लिप्टिस ही है सिर्फ। अ, जी। उसका नॉस्ट्री कैप, जी सर। नॉस्ट्री कैप नॉस की इनहेलेशन अच्छी है साइनोसाइटिस में। अब आप इसको बॉइलिंग वाटर में भी डाल के दे सकते हो एक कैप्सूल को, या ऐसे ही पेशेंट को बोलिए कि आप रुमाल पे रखिए, स्निफ करिए, तो इमीडिएटली ये ब्लॉकेज खोलता है। तो अक्यूट वाली कंडीशन में जहाँ पे नॉस्ट्रिल ब्लॉक है, एक साइड का, है ना, हेडेक हो रही है बड़ी, या ऐसे भी अगर इन्फ्लुएंजा राइनाइटिस है, तो उसमें नॉस्ट्री कैप का अच्छा रिजल्ट है। जी सर। हाँ सर एक और क्वेश्चन है सर, डीएनएस के केसेस में भी ये बार बार होता है ये? हाँ, डीएनएस के केस में सेम अप्रोच आप जो हमने डिस्कस की है, सेम अप्रोच। नासार्थ वाले? जी हाँ, सेम अप्रोच आप स्टार्ट कर सकते हैं। सर। चित्रकृति का रोल उसमें जी। अच्छा है, अगस्त्य ऋतकी के रसायन का, चित्रकृति का ज़्यादा अच्छा रोल है उसमें। जी सर। दशमूल कटुत्राइनम के साथ साथ चित्रकृति के लिए हम। जी सर। सर डीएनएस करेक्ट कर सकते हैं सर ये हम लोग मेडिकेशन के थ्रू या सर्जिकल ये नहीं, काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है, काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है। इसी ट्रीटमेंट से सर हो जाएगा वो डीएनएस के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे बाहर कुछ नहीं है, यही जी। ट्रीटमेंट है, यही जी सर। ट्रीटमेंट। थैंक यू पर सर। सर जैसे कि जो डीएनएस है वो थोड़ा सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर उसमें आ नहीं, जाता है हाँ, कि वो उसका वही वही कुछ। मैं कह रहा हूँ ना, काफ़ी हद तक आप उसके सिम्टम्स नब कर सकते हो। जो इन्फ्लेमेशन लोकलाइज रहती है वो आप काफ़ी हद तक उसको ठीक कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो अच्छे से। जो सर्जिकल पर पार्ट है सर वो ओबियसली। डेविएशन के लिए तो सर्जिकल जहाँ सब फिजियोथेरेपी हाँ, से भी हो जाता है क्या, वो जो गन से करते हैं? आई थिंक तो आजकल गन चली है फिजियोथेरेपी की। नहीं उसका मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन जो सर्जिकल पार्ट है वो तो सर्जरी से जाएगा। लेकिन आप काफ़ी हद तक मैनेज, क्योंकि सर्जरी करवाने के बाद भी लोगों को दोबारा होता है, तो डीएनएस एक टाइप का एलर्जिक कंडीशन मेरे हिसाब से रहती है। तो आप मैक्सिमम केस इस अप्रोच से ठीक कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ऑब्वियसली जो एनाटॉमिकल कंडीशन है जो कि सर्जरी से जाएगी, वो तो मेडिसिन से नहीं ठीक हो सकती, लेकिन काफ़ी हद तक आप केसेस इससे ही मैनेज कर सकते हो। सर अगर साइनोसाइटिस और डीएनएस का केस है और पेशेंट पित्त प्रकृति का है, हाँ तब इसमें वर्णादि ये गुगलू तिक्तकम भी थोड़ा सा वो पड़ेगा, तो हाँ, इसमें क्या गुगलू तिक्तकम शायद सूट कर जाए, गुगलू तिक्तकम या पथ्याक्ष धात्री आदि की शाय, जी सर। पथ्याक्ष धात्री आदि की शाय गुगलू तिक्तकम, ये आपको रिजल्ट दे सकता है। सर जिनको क्रॉनिक हो गया हो, है ना, जैसे कोई ओल्ड एज पेशेंट है उसमें क्रॉनिक ये एलर्जिक राइनाइटिस हो गया हो, तो बल हाँ क्षय हुआ हो, तो सर ये इंदुकांतम ही मैनेज कर सकता है उसको या हाँ, कुछ अलग से? इंदुकांतम दे सकते हैं। बाकी आने वाले दिनों में हम और ड्रग्स भी यूज़ करेंगे, बताएंगे आपको, और साइन कल्पना है,
अभ्रक भस्म होगी, कुछ और रसायन कल्पना है, च्यवनप्राश भी आप दे सकते हैं, है ना। वो देखेंगे लास्ट में जब हम वो वाली क्षय वाली, जैसे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप हमारे यक्ष्मा में देखेंगे ना, वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। सर इंदुकांतम कषाय को सर ये कफ ओरिजिन में देना है सर, हाँ, कफ कफ किनवा, क्रॉनिक, क्रॉनिक थोड़ा। क्रॉनिक कफ। जी सर। हाँ, कोई और क्वेश्चन किसी का? द फाइनल कॉल, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट सर एक लेक्चर। और क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ। हाँ सर, जैसे एलर्जिकल राइनाइटिस है, बॉडी अगर अपने डिस्चार्जेस दे रही है तो वो बाहर की ओर होना चाहिए। तो त्रिभुवन कीर्ति जो है कफ शोषक रस है, ज्यादा कफ का शोषण करने वाली, सुखाने वाली। तो ये बेटर रहेगा सर कि हम नारदी लक्ष्मी विलास यूज कर सकते हैं, जो थोड़ा एक्सपेक्टोरेंट भी एक्शन है उसका। दोनों यूज कर सकते हैं, नारदी लक्ष्मी विलास रस उसमें यूज कर सकते हैं जहाँ पे क्षय थोड़ा सा हो रहा है, जी फीवर नहीं है इतना। नारदी लक्ष्मी विलास रस बेसिकली रसायन प्रॉपर्टी ज़्यादा शो करते हैं, जी है ना। तो आप थोड़ा सा रसायन, ये क्रॉनिक कंडीशन में अच्छा रहता है। त्रिभुवन थोड़ा सा अक्यूट में अच्छा रहता है, जी सर। त्रिभुवन अक्यूट में, नारदी क्रॉनिक में। जी सर। ये एक्चुअली अगर आप इसकी फलश्रुति देखो नारदी लक्ष्मी विलास रस की, तो वाजीकरण का भी इसमें फलश्रुति है। तो वाजीकरण मीन्स जी अगर किसी को इतना क्रॉनिक राइनाइटिस हो चुका है कि वो क्षय में जा रहा है, तो उसका अगर सेक्सुअल वीकनेस भी हो गई है, तो उसमें नारदी लक्ष्मी विलास रस अच्छा रोल प्ले करता है। त्रिभुवन जी जी प्योरली अक्यूट कंडीशन के लिए, या क्रॉनिक चल रही है पेशेंट को, अभी अक्यूट का उस पे सबमिशन हुई है, तो क्रॉनिक ऑन अक्यूट, तो उसमें त्रिभुवन अच्छा रहे। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। ओके, ओके देन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। कुछ और डिजीजेस के साथ आपको आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके।